Hello friends, myself Hina Desai from Ashwamegh Vidyalaya. Today we learn Standard 12th English Medium, English subject, Flamingo book, chapter number 2, Lost Springs, Stories of Stolen Childhood. Okay, so we see our last video lecture, this chapter question answer, understanding the text, talking about the text, think as you read, and all these question answer we see our last video lecture. Okay, so in this lesson first we revise. Okay, in this lesson there was two stories. First, sometimes I find a rupees in the garbage. Okay, and second one is I want to drive a car. In first story, sometimes I find a rupee in the garbage. In the stories, our author Anis Jung telling about the rag picker boy and whose name is a Sahib. Okay, and Sahib Sahib is from Dhaka, but he and his family leave this place Dhaka because that stormy wind and all destroy their field and homes and all. Like this, telling his mother. That's why they left their house and they come to cities looking for gold. Gold means not a metal gold but some valuable things. Some valuable things, क्योंकि गोल्ड मीन्स की वैल्यूएबल थिंग्स, क्योंकि वैल्यूएबल थिंग्स मीन्स कि जो थिंग्स उससे वो लोग इजीली सर्वाइव कर सके. ओके, और जो साहिब है, ठीक है, वो रैक पैकिंग से बहुत हैप्पी थे. आफ्टर दैट जो साहिब है वो पर डे पर मंथ 800 रुपीज़ per month. He doing job in tea stall. Okay, and after that, the tea stall, Say was not happy because he was not his own master. And this steel canister means कि this container means कि the steel canister seems heavier than the plastic bag that Sahib would carry so lightly over that Sahib's shoulder, and the bag was his. This plastic rack packing this in picture you see that the bag was his, and the canister belongs to the man whose honor the tea shop, and Sahib is no longer his own master, and that's why Sahib was not happy. Okay, and in this story we see that one irony and contrast also. That Sahib's name was Sahib Alam, and its means was that the universe of Lord. Okay, and this the Lord of Universe, its meaning, Sahib's name meaning. And Sahib don't know his name's meaning, and Sahib always roaming and here and there, but he don't know the name of his meaning. जब साहिब को पता चलेगा कि उसका जो नेम है साहिब, उसका मीनिंग ये होता है, और जो उसका अपोजिट बिल्कुल अपोज वो वर्क कर रहा है, कि रैक पैकिंग का वर्क कर रहा है. ओके, एंड नाउ वी सी इन सेकंड स्टोरीज. In second story, that was a boy whose name was Mukesh, and this Mukesh want to drive a car, and Mukesh belongs to Bengal maker family, and Bengal maker family is famous for its Bengal, and it's where that Firozabad.
Firozabad was famous for its Bengal. In India, this glass blowing industry in Firozabad. And in Firozabad, every family engaged with Bengal making. But Mukesh was totally opposed that family because Mukesh want to become a motor mechanic. And Mukesh also said that he goes to garage and learn to how to drive a car and how or motor mechanic. Okay, in Mukesh family, Mukesh father knowing only Bengal making, and in whole life he was doing hard work but only making one house only, and not give a good education to able to give good education Mukesh and his brother. And Mukesh daddy says it was his karma. Okay, so we see that in our last video lecture that all question answer, and today we talking about language. In this whole chapter some figure of speech are used in this chapter. So we see that talking about language, although these texts talking about language, although this text speaks of factual event and situation of misery, it transforms this situation with an almost poetical prose into literary experiences. How does it do so? Here are some literary device. Here जो some literary device दिए गए हैं. Figure of speech. Hyperbole is a way of speaking or writing that makes something sound better or more exciting than it really is. कि जो हाइपरबोल है उसमें जो थिंग्स है कि जो कोई भी जो बात बोली जाती है या फिर लिखी जाती है तो कुछ भी जो क्या है कि जो उससे है उसे उसको बेटर या फिर मोर एक्साइटिंग देन इट रियली कि जो वो चीज़ है रियल में है उससे कुछ ज़्यादा ही उसका सपोज उसके बारे में बताना या फिर लिखना कि कुछ भी कि मीन्स कि जो बात है उसे बना चढ़ाकर कहना उसे कहते हैं हाइपरबोल। यहाँ एग्जांपल दिया गया है कि गार्बेज टू देम इज़ गोल्ड। मीन्स गोल्ड जो गार्बेज मीन्स कि कूड़ा जो कचरा है वो, टू देम मीन्स कि रैक पिकर इज़ गोल्ड। गोल्ड मीन्स कि वैल्यूएबल थिंग्स। और वी कैन ऑल्सो से दैट गोल्ड मीन्स कि जो एक धातु है। ओके, सो मेटल गोल्ड। तो गार्बेज टू देम इज़ गोल्ड, जो कचरा है कूड़ा है उसको गार्बेज बोला गया है तो कुछ ज़्यादा ही कहा गया कूड़े के लिए। तो यहाँ ये हाइपरबोल हुआ। नेक्स्ट है अ मेटाफोर। वी सी इन आवर that last year in 11th standard that all figure of speech in that metaphor as you know compares two things or ideas that are not very similar. A metaphor describes a thing in terms of a single quality or feature of some other things. We can say that a metaphor transfers quality of one thing to another. Okay, जो मेटाफर है, मेटाफर as you may know compare two things और idea। जो मेटाफर है वो जो two things है और या फिर two ideas है उसमें comparison होती है। That are not very similar। ये compare तो होती है लेकिन both are not a similar। A metaphor describes a thing in terms of single quality or
फीचर्स ऑफ सम अदर थिंग्स, कि जो मेटाफर है वो डिस्क्राइब करती है थिंग्स और टर्म इन सिंगल क्वालिटी. वी कैन से दैट अ मेटाफर ट्रांसफर्स क्वालिटी ऑफ वन थिंग्स टू अनदर. और वी कैन ऑल्सो से दैट कि मेटाफर जो है वो ट्रांसफ़र क्वालिटी, जो क्वालिटी है वो ट्रांसफ़र करती है इन ऑफ वन थिंग्स टू अनदर थिंग्स. यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है. फॉर एग्जांपल, द रोड वॉज रिबॉर्न ऑफ लाइट. थर्ड है सिमिली. सिमिली इज अ वर्ड or phrase that compares one things with another using the word like or as. कि जो सिमिले है उसमें जो दो थिंग्स है उसे कंपेयर किया जाता है like और as वर्ड यूज़ करके. कि फॉर एग्जांपल, as white as snow. यहाँ जो स्नो है, बर्फ़ है, उसे वाइट से कंपेयर किया गया कि as white as snow, कि इतना वाइट जैसे जो बर्फ़ है, बर्फ़ जितना वो वाइट है. ओके. केयरफुली रीड द फॉलोइंग फ्रेज एंड सेंटेंसेस टेकन फ्रॉम द टेक्स्ट. जो यहाँ टेक्स्ट में से जो सेंटेंस लिए गए वो आपको केयरफुली रीड करने हैं. कैन यू आइडेंटिफाई द लिटरेरी डिवाइस इन ईच एग्जाम्पल. और जो यहाँ सेंटेंस दिए गए हैं, ठीक है, तो उसमें से आपको लिटरेरी डिवाइस कौन सी फिगर ऑफ स्पीच उसमें यूज़ हुई है वो आपको फाइंड आउट करना है. फर्स्ट है साहिब ए आलाम. Sahib-e-Alam, which means the Lord of the universe, is directly contrast to what Sahib is in reality. तो उसमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच यूज़ हुई है, तो आएगा हाइपरबल. क्या आएगी, साहिब आलम विच मीन्स द लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स इज डायरेक्टली इन कॉन्ट्रास्ट टू व्हाट साहिब इन रियलिटी. तो यहाँ जो साहिब की रियलिटी है, ठीक है, उसे अपोज है टोटली, कि साहिब आलम मीन्स कि लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स होता है, और यहाँ तो पूरा कॉन्ट्रास्ट. सो यहाँ जो फिगर ऑफ स्पीच होगी वो हाइपरबल होगी. सेकंड है ड्राउन इन एन एयर ऑफ डिसोलेशन. तो उसमें क्या आएगा, मेटाफर. सेकंड है उसमें मेटाफर आएगा, फर्स्ट में हाइपरबल आएगा. नाउ थर्ड है Simapuri, a place on the periphery of Delhi yet miles away from it metaphorically. तो वो क्या है, उसमें कॉन्ट्रास्ट है. फोर्थ, for the children it is wrapped in wonder. For the elders it is means of survival. तो ये क्या है, यहाँ पे दोनों में कॉन्ट्रास्ट है कि जो रैग पिकिंग है, ठीक है, तो वो एज चिल्ड्रन के लिए क्या है, वैप इन वंडर, और जो पेरेंट्स है उसके लिए मीन्स ऑफ सर्वाइवल. तो ये दोनों में कॉन्ट्रास्ट है, अपोजिट है. सो आएगा कौन सी फिगर डिवाइस यूज हुआ है यहाँ पे, लिटरेरी डिवाइस, तो कॉन्ट्रास्ट. फिफ्थ, एज हर हैंड मूव मैकेनिकली लाइक द टंग्स ऑफ अ मशीन्स, आई वंडर इफ शी नोज द
सेंसिटी ऑफ द बेंगल शी हेल्प्स मेक। जो फोर्थ वन है उसमें आएगा सिमिली। एज के तो आएगा सिमिली। जो फिफ्थ वन है उसमें आएगा सिमिली। नाउ सिक्स नंबर, she still has bangles on her wrist but not light in her eyes। कि उसके हाथ में अभी बैंगल्स है लेकिन उसकी आँख है उसमें रोशनी नहीं है। तो आंसर क्या आएगा? अपोज है, तो आएगा 6 में कॉन्ट्रास्ट। सिक्स वन में आएगा कॉन्ट्रास्ट। Okay, now 7. Few airplanes fly over फिरोज़ाबाद। कि फिरोज़ाबाद है, थोड़े बहुत प्लेन फ्लाई ओवर करते हैं। तो क्या आएगा आंसर? हाइपरबोल। 8. वेब ऑफ पॉवर्टी मीन यहाँ पे आएगा मेटाफोर। ओके, सो फर्स्ट में आएगा हाइपरबोल, सेकंड में आएगा मेटाफोर, थर्ड में आएगा कॉन्ट्रास्ट, फोर्थ में भी कॉन्ट्रास्ट, फिफ्थ वन में सिमिली, सिक्स में कॉन्ट्रास्ट, सेवंथ हाइपरबोल एंड 8 मेटाफोर। Okay, now sentence number 9. Scrounging for gold। 9 है, उसमें भी क्या आएगा? मेटाफोर। Now 10th. And survival in Simapuri means rag picking. Through the years, it has acquired the proportion of a fine art। तो उसमें क्या आएगा? हाइपरबोल। उसके भी कुछ बना चढ़ा के कहा गया है, सो हाइपरबोल। एंड लास्ट वन 11th. The steel canister seems heavier than the plastic bag he would carry on lightly over his shoulders। कि तो लास्ट वन है, उसमें कॉन्ट्रास्ट आएगा कि जो स्टील कैनिस्टर है, ठीक है, वो प्लास्टिक बैग से हेवियर है। तो वो दोनों में अपोज किया गया है, कॉन्ट्रास्ट आएगा। आगे देखते हैं। थिंग्स टू डू, आपको क्या करना है? द ब्यूटी ऑफ द ग्लास बैंगल ऑफ फिरोजाबाद कॉन्ट्रास्ट विद द मिजरी ऑफ पीपल हु प्रोड्यूस देम। कि जो फिरोजाबाद है उसमें उसकी ब्यूटी है ग्लास बैंगल्स, ठीक है, और लेकिन उसमें जो कॉन्ट्रास्ट है विथ जो वहाँ की जो पुअर फैमिली है उसकी जो मिजरी है, मिजरी ऑफ पुअर पीपल हु प्रोड्यूस देम। की जो बैंगल्स जो है, ठीक है, ग्लास बैंगल, वो है तो बहुत दिखती, ठीक, अच्छी दिखती है, लेकिन जो उसको बनाने वाले हैं, उसके जो प्रोड्यूस करने वाले हैं पीपल, उसकी जो मिजरी है, ठीक है। दिस पैराडॉक्स is also found in some other situation. For example, those who work in gold and diamond mines or carpet weaving factories and the products of their labor, the lives of construction workers and the building they build। यहाँ एग्जाम्पल भी दिया गया है कि जो ग्लास बेंगल्स है, ठीक है, तो उसी तरह से जो है वर्कर who work in gold and
डायमंड्स माइन, कि जो डायमंड्स की जो खाई है, माइन है, ठीक है, उसमें काम करते हैं, और कारपेट वेविंग फैक्ट्रीज की, कारपेट वेविंग की फैक्ट्री में काम करते हैं, एंड द प्रोडक्ट ऑफ देयर लेबर द लाइव्स ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, जो कंस्ट्रक्शन वर्कर है उसकी लाइफ, एंड बिल्डिंग दे बिल्ड। ओके, सो लुक अराउंड एंड फाइंड एग्जाम्पल ऑफ सच पैराडॉक्सेस, कि आपको ऐसे आपके आसपास सराउंड एरिया में जो कुछ ऐसे एग्जाम्पल है तो आपको वो लिखने हैं। राइट अ पैराग्राफ ऑफ अबाउट 200 to 250 words on any one of them. You can start by making notes। और आपको जो सराउंडिंग में जो ऐसे पीपल है तो आपको उसके बारे में लिखना है। यहाँ एक एग्जाम्पल दिया गया है, पैराग्राफ है, उससे आप लोगों को स्टार्ट करना है। हियर इज एन एग्जाम्पल फॉर हाउ वन सच पैराग्राफ में बी बिगन। You never see the poor in this town. By day they toil working cans and earth movers, squealing deep into the hot sand to lay the foundation of Rome. By night they are banished to bleak labor camps at the आउटस्क्रिट ऑफ द सिटी। जो यहाँ पे पैराग्राफ लिखा है उसे आप लोगों को स्टार्ट करना है। कि और जो आगे दिया गया है, अबाउट द थीम, सब थीम, कंप्रीहेंशन, टॉकिंग अबाउट द टैक्स, थिंकिंग अबाउट लैंग्वेज, थिंग्स टू डू, के और राइटिंग। तो उसमें कुछ जो क्वेश्चन आंसर जैसा कुछ है नहीं, ठीक है, तो वो हम सब स्किप करते हैं। राइटिंग में नोट मेकिंग एंड रिपोर्ट राइटिंग है। तो अभी जो हम लोगों को अभी ये टॉपिक बाकी है, नोट मेकिंग और रिपोर्ट राइटिंग का। ओके, सो आज जो ये चैप्टर में हम जो 3 लिटरेरी डिवाइस है, 3 फिगर ऑफ स्पीच है, ठीक है, वो हमने देखी। कौन सी जो हाइपरबल है, मेटाफर और सिमिले एंड कॉन्ट्रास्ट। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड। हियर वी स्टॉप। इन our next video lecture we start our new lesson. So okay, keep watching our channel. Thank you very much.